Okay, so good morning, class. I hope you all are doing great. So let's start with the today's topic, that is right of medication administration, or why these right of medication administration are important. So anyone in the class who knows about this a little bit, please tell me. Okay, okay. So yeah, right of medication administration is important to prevent harm to the patient or prevent medication errors. It's just like a safety checks. That's why these right of medication administration is important. There are several kind of right of medication administration. Some will tell you 5, some will tell you 9, or some may will tell you 12. Okay. So there are basic 5 pillars of right of administration, medication administration. These are right client, right drug, right dose, right route, and right time. And some other are just like right documentation, right to refuse, right to response, right to educate, right to evaluate, these kind of medication administration right. Okay. So firstly, we have to know about first right, that is right client or right patient. So how will you identify your right patient or right client? Anyone, please tell me. ओके सो वी हैव टू गिव डबल चेक ऑलवेज। जब भी हम पेशेंट को चेक करेंगे, ऑलवेज गिव डबल चेक। सो आई एम सेइंग डबल check. So what do you mean by that double check? It means some other nurse will check the patient, or you have to give that two checks. It's only you to give two checks. Firstly, I'm just telling you, you can ask patient, what's your name, what's your last name, and what's your date of birth, sir. You can ask these, and then you can identify this with your notes or with your patient's file or the band on patient's hand. And there is one unique ID, that is only a patient ID, that will differentiate the one patient with the another patient. अब इसमें हमारे पास हमें राइट पेशेंट या राइट क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है? हमें राइट पेशेंट या राइट क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो मेडिकेशन हमने एक पेशेंट को देनी है वो कहीं हम उस दूसरे पेशेंट को तो नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, your one patient is on ACE inhibitors and some are on another medication, but you आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेशेंट। एंड अब आपने जिसको एसी इनहिबिटर देनी थी आपने उसको डायरेटिक्स दे दी, और जिसको आपने डायरेटिक्स देनी थी उसको आपने एसी इनहिबिटर्स दे दी। तो दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अलग हैं, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मेडिकेशन एरर कर दिया। तो इसी मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए और साथ में हमारे पेशेंट को हार्म से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट पेशेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब ठीक है, अब आपने राइट पेशेंट तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, दैट इज राइट मेडिकेशन। अब राइट मेडिकेशन के बारे में क्या पता है कि हम राइट मेडिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही मेडिकेशन इस पेशेंट को देनी है? तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस? So we have to give triple checks here in to identify that right medication. सबसे पहले we have to, हम क्या चेक करेंगे इसमें, हम प्रिस्क्राइबर के नोट्स चेक करेंगे कि which medicine a prescriber prescribed to that patient, और कौन सी मेडिकेशन उसको चल रही है। आपने नोट्स चेक किए, देन यू डिस्पेंस दैट मेडिकेशन फ्रॉम योर फार्मेसी। अब आप इसमें क्या करोगे, अगेन वी हैव टू मैच एंड वॉच। हम अब देखेंगे कि आप प्रिस्क्राइबर ने जो भी मेडिसिन दी थी क्या वो यही है, और जो हमने फार्मेसी से मंगाई है क्या वो सेम मेडिसिन है। हम यहाँ पे उनको चेक करेंगे, लाइक देन वी हैव टू वॉच। फिर हमने उसको चेक किया, अब हमने इसमें वॉच क्या क्या चीजें हम इसमें करेंगे, तो हम इसमें वॉच करेंगे एक्सपायरी डेट, कि कहीं जो भी हमने मेडिसिन जो है वो फार्मेसी से इंडेंट कराई है क्या वो एक्सपायर है या नहीं है। if the medicine is expired, you have to return this medication again to the pharmacy, okay? And then अब हम क्या देखेंगे उसमें, हम उसमें डैमेज देखेंगे, लाइक हमारी सील तो ओपन नहीं है, या हमारी कोई मेडिसिन है वो कहीं ब्रोकन तो नहीं है, या क्रश तो नहीं है। हम ये सारी चीजें इसमें चेक करेंगे, और साथ में हम अपने पेशेंट से भी पूछेंगे, सर यू आर एलर्जिक टू दिस मेडिकेशन और नॉट, ठीक है? ये पूछना जरूरी है साथ में। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि इसमें मैच एंड वॉच भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वी हैव सम ड्रग लुक अलाइक और साउंडर लाइक ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल हियर ऑफ एसिटाजोलामाइड एंड एसिटोहेक्सामाइड। एसिटाजोलामाइड वी गिव this medication as a diuretic, and
एसिटोहेक्सामाइड, वी गिव दिस मेडिकेशन एज ए डायबिटिक। तो हम अब इन दोनों को अगर आप देखोगे या आप इन दोनों मेडिसिन को पढ़ोगे तो ये आपको सेम सेम लगेगी। तो यहाँ पे हमसे क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। इसीलिए हम जब भी मेडिसिन प्रिस्क्राइबर नोट्स पे पढ़ेंगे और जब भी हम उसको फार्मेसी से डिस्पेंस करेंगे तो यू हैव टू चेक दीज मेडिकेशन केयरफुली टू प्रिवेंट दैट मेडिकेशन एरर हियर। ओके, सो अगर आपको ये समझ आ गया प्लीज लेट मी नो और रेज योर थंब। ओके, सो नेक्स्ट मूव फर्दर, दैट इज राइट डोज। आपने पेशेंट भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मेडिसिन भी आइडेंटिफाई कर ली, एंड देन वी हैव टू चेक अबाउट राइट डोज कि अब पेशेंट को हमने कितना डोज देना है या कौन सा डोज हमने पेशेंट को देना है, या प्रिस्क्राइबर ने कितना डोज जो है वो पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करा हुआ है। यहाँ पे हमें अपना थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा, जो कि आई नो बीइंग साइंस स्टूडेंट्स हमारा थोड़ा कमजोर होता है। सो वेरीफाई द ऑर्डर डोज, हमने चेक किया, वेरीफाई करना। अब वो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, हम अपने नोट्स पे देखेंगे और हम अपने प्रिस्क्राइबर नोट्स पे देखेंगे। हम अपने मेडिकेशन चार्ट में और प्रिस्क्राइबर के नोट्स में देखेंगे कि हमें 4 mg दिया गया है, 4 ml दिया गया है, 4 ग्राम दिया गया है या kg पर ml दिया गया है। सो लाइक वी हैव टू कैलकुलेट द ड्रग कैलकुलेशन हेयर। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास ml में है तो हम कितना ml पर kg देते हैं, हमने किस जीटीटी से देना है, जीटीटी मींस हमने कौन से ड्रॉप फैक्टर से उसको देना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे चेक करनी है। सो दैट्स व्हाई ड्रग डोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड नेक्स्ट वी है, अब आपने डोज भी सिलेक्ट कर लिया, अब हम सिलेक्ट करेंगे राइट डोज रूट। सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस इज अ राइट रूट एंड राइट फॉर्म, अब हमने इसको चेक करना है। तो वो हम कैसे देखेंगे, ये भी हम प्रिस्क्राइबर के ही नोट्स पे देखेंगे। क्या हमारे प्रिस्क्राइबर ने हमें उसको ओरली देने के लिए बोला है या टॉपिकली देने के लिए बोला है या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स के लिए बोला गया है, इंट्रामस्कुलरली बोला गया है या सबक्यूटेनियस बोला गया है। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट रूट ना, जो जिससे हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर, पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसको, हाउ आर यू एडमिनिस्टरिंग दिस मेडिसिन, कि हम इस मेडिकेशन को कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। और दूसरा हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ विल दिस मेडिकेशन एंटर इन द बॉडी। लाइक अगर आईएम रूट से दे रहे हैं तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करेगी, किस तरीके से वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फाइंड आउट करेगी। ओरली दे रहे हैं तो व्हाट इज दैट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबलिंगुअल है तो व्हाट्स दैट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें हमें ये सारी चीजें जानना जरूरी होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइट रूट एंड राइट फॉर्म व्हाइल यू एडमिनिस्टर द ड्रग टू द पेशेंट टू अवॉइड द हार्म। अगर हमें ओरली बोला है और आप उसको आईवी दे रहे हो तो साइड इफेक्ट में भी अकर देयर, आई थिंक देयर नो साइड इफेक्ट बट द रूट इज डिफरेंट। एंड जो भी फिर उसका एंटर होएगा बॉडी में, एंटर होने के बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होएगा वो वेरी कर जाएगा वहां पे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें राइट रूट और राइट फॉर्म का पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव राइट टाइम एंड राइट फ्रीक्वेंसी। अब मुझे ये बताओ कि राइट टाइम और राइट फ्रीक्वेंसी क्यों इतना वेरी करता है, या हम क्यों बोलते हैं कि इट इज अ क्रिटिकल थिंग। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों, इफ यू गिव दिस मेडिकेशन ओडी, योर प्रिस्क्राइबर सेड यू हैव टू गिव दिस मेडिकेशन ओडी बट यू प्रोवाइड दिस मेडिकेशन बीडी। सो आपने क्या कर दिया, आपने ड्रग की ओवरडोज कर दी है। अगर आपने ड्रग की ओवरडोज कर दी है तो पेशेंट में ड्रग की टॉक्सिसिटी होना हो सकती है ना, या उसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। इसीलिए हमेशा, सॉरी, इसलिए हमेशा आपको पता होना चाहिए कि हम मेडिसिन को कौन से टाइम पे दे रहे हैं और कौन सी फ्रीक्वेंसी। टाइम इज लाइक बेटा एएम वाली है, पीएम वाली है या नाइट वाली है। एंड फ्रीक्वेंसी मींस आप उसको पर डे कितना दे रहे हो, वंस अ डे दे रहे हो, ट्वाइस अ डे दे रहे हो, थ्राइस अ डे दे रहे हो, या आप उसको क्यूआईडी दे रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पे मैटर करता है। जैसे मैंने बोला, अगर आप ड्रग को टू अर्ली दे रहे हो, आप उसको जल्दी दे रहे हो, ठीक है, लाइक हमने 6 बजे देनी थी बट आप उसको 4 बजे दे रहे हो। हमने 12 आवर का हमने उसके बीच गैप रखना था बट आपने उसके बीच में 8 घंटे का गैप रखा। तो ड्रग क्या हो जाएगा बेटा, उसकी ओवरडोज हो जाएगी, दैट टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ड्रग अभी मेटाबोलाइज या एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हुई है और आपने दूसरी ड्रग उसको दे दी है जिसकी वजह से ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और वेयर एज आई सेड इफ यू गिव दैट ड्रग टू लेट, अगर आप उसको लेट दे रहे हो तो लेट होने से क्या होएगा, हमें अपनी ड्रग को, एक तो आप पहली बात आप डोज को मिस कर दोगे, सेकेंडली हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उस ड्रग और उस डोजिंग की।
ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, अब हम इंसुलिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इट इज अ क्रिटिकल मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स और इंसुलिन। सो हियर आई विल टॉक अबाउट योर इंसुलिन। सो your prescriber said that you have to give insulin or pre-meal, but you skip that dose and you give it after meal. So you will give that medication after meal or do not give. Obviously, you don't give that medication after meal to your patient because it is a pre-meal medication. So अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब उस डोज को फिर से क्या करना पड़ेगा बेटा, क्लॉक के अकॉर्डिंग उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि पेशेंट में कोई भी अनडिजायर्ड इफेक्ट्स ना आए। हमें तो मेडिसिन से डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए ना, बट अगर हम उसको अर्ली दे रहे हैं, लेट दे रहे हैं, तो वी विल ऑब्वियसली गेट अनडिजायर्ड इफेक्ट्स ना। सो इस एरर को भी प्रिवेंट करने के लिए राइट टाइम और राइट फ्रीक्वेंसी पता करना और जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू ऑल गेट इट दिस। एंड सम अनदर आई सेड there are some another medication rights that we have to know about, that is right documentation, right response, right reason, right education, right to refuse, or right evaluation. And here, right to documentation is very important for being a nurse. Okay? Why I said this is very important, because it serves you as a legally in the terms of, इसमें क्या होएगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेडिसिन स्किप कर दी है, ठीक है, और आपने उसको क्या नहीं करा है, डॉक्यूमेंट नहीं करा है, तो वो आपके लिए क्या होएगा, एरर हो जाएगा। और वो साथ में आपकी आपकी क्या होगी, वो एक आपने क्या किया, नेग्लिजेंस शो किया है हियर, ठीक है। तो राइट डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये लीगल राइट है हमारी नर्स के लिए, तो इसलिए हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि हम कौन सी मेडिकेशन दे रहे हैं, और साथ में उस मेडिसिन को डॉक्यूमेंट करना है। तो उसमें अब हम क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे बेटा, बताओ। सबसे पहले हमारे पास मेडिकेशन चार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करा होता है, हमने लिखा होता है ना कि हम कौन से मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, कौन से टाइम पे दे रहे हैं, कौन से रूट से दे रहे हैं, ठीक है, लिखा होता है ना। तो वही सारी चीजें हमने उस पे क्या करनी है, मेंशन आउट करनी है कि ये मेडिसिन थी, दिस नेम ऑफ मेडिसिन, नेम ऑफ ड्रग, ने रूट, डोज, फ्रीक्वेंसी और टाइम, और साथ में उसके वाइटल साइन उस टाइम पे क्या थे, या आफ्टर मेडिसिन आपके पेशेंट के वाइटल साइन क्या थे, उसकी लैब्स क्या थी, ये सारी चीजें हमने उस पे क्या करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। And next we have right reason. If you don't know the reason why you are giving this medication to your patient, there is no mean to that. Okay. So here आपको क्या करना चाहिए, आपको right reason पता होना चाहिए कि आप ये medicine patient को क्यों दे रहे हो. What is the use of this medication? Why you are giving this medicine to your patient? As earlier I give you example कि हम एक को AC इनहिबिटर दे रहे हैं और एक को डायरेटिक दे रहे हैं। आपको पता है कि मेरे इस वाले पेशेंट पे डायरेटिक्स चल रही है और इस वाले पेशेंट को एसी इनहिबिटर्स चल रही है, बट बीइंग अ नर्स अगर आपको यही पता नहीं है कि दिस मेडिकेशन इज अ एसी इनहिबिटर और दिस मेडिकेशन इज अ डायरेटिक, सो यू डोंट गिव राइट मेडिकेशन टू योर पेशेंट। फिर तो आप उसको दे दोगे कोई भी गलत मेडिसिन। अगर यहाँ पे आपको पता होगा कि दिस मेडिसिन इज एसी इनहिबिटर और ये मेरे इस पेशेंट को चल रही है, सो हियर यू विल आइडेंटिफाई दिस। दैट्स व्हाई राइट रीजन इज इम्पोर्टेंट, टू नो व्हाट इज द राइट रीजन ऑफ गिविंग दिस मेडिसिन। ओके, सो यहाँ पे आप एक एरर होने से आप यहाँ इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव राइट एजुकेशन। Why this right of education is very important, because it's right of the patient to know about what medicine he is taking or why this medicine is given to that patient. So right education is important. So being a nurse, you have to educate your patient well about the drug, about the dose, and why you are giving this medicine, and also tell your patient why these are, what are the normal signs, and what are the desired effects of this medicine, or what are the side effects of this medicine, and how to take this medicine. It's your right to educate your patient. For example, if your patient is on rifampicin, that is TB drugs and okay, tuberculosis drug, so अब मुझे ये बताओ, if patient is having a orange tinge color urine, so it is a normal finding. But if you don't educate your patient regarding this, your patient will be like, this is a side effect, or may something is
हैपनिंग रॉन्ग विद मी। तो इसमें आपका पेशेंट क्या हो जाएगा, वो डर भी सकता है, वो पैनिक कर सकता है उस टाइम पे। बट इफ यू rightly educate your patient that if you take this medicine sir, this is the effect that is happening। अगर हमने उसको बताया है कि उसको ऑरेंज टिंज कलर यूरिन जो है उसकी एक नॉर्मल फाइंडिंग होगी उस मेडिसिन को लेने के बाद, रिफेम्पिसिन को लेने के बाद, तो पेशेंट डज नॉट पैनिक ना। So that's why you have to educate your patient well. Okay. So next we have I am here also one example. Like if your patient is diabetic, if your patient is diabetic and you discharge your patient is on insulin R. Okay. So if you educate your patient how to take subcutaneous injection, or you educate him or her properly, so he or she may will take their injection or subcutaneous injection properly. But if you don't educate them or do not demonstrate them, so how do they will take their injection? Okay. सो यहाँ पे एरर भी हो सकता है, घर जाके भी एरर हो सकता है और पेशेंट इसमें भी पैनिक कर सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं उसके बारे में। घर जाने से पहले हम उनको बता रहे हैं कि सर आपको इस तरीके से अपना सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको शायद पता होगा, और जो नहीं करते वो आगे जब भी उनकी जॉब लग जाएगी देन दे विल गेट टू नो अबाउट दिस। ठीक है, तो इसलिए राइट एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव राइट रिस्पॉन्स। राइट रिस्पॉन्स और राइट इवेलुएशन, इट इज वन। लाइक अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, अब हम इसमें क्या करते हैं, मॉनिटर और असेस करते हैं पेशेंट के डिजायर्ड रिस्पॉन्स और अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स। ओके, सॉरी। अब हम ये डिजायर्ड और अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे, मुझे कोई बता सकता है? हम्म, अगर आपने पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करे होंगे, इसका इनपुट आउटपुट चेक करा होगा, या उसकी लैब्स अपने मेडिकेशन देने से पहले और मेडिकेशन देने के बाद अगर आपने उन चीजों को चेक करा होगा, तो यू विल गेट टू नो दैट डिजायर्ड और अनडिजायर्ड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। अगर आपको पता है कि आपने ये मेडिसिन दी थी और इसमें फॉर एग्जाम्पल इफ वी गिव एनी मेडिसिन एंड द पोटेशियम लेवल इज 4.6 ऑफ योर पेशेंट, दैट इज इन योर नॉर्मल रेंज, बट आफ्टर गिविंग दैट मेडिसिन एंड अब हम उसकी लैब फिर से करा रहे हैं उस मेडिसिन को देने के बाद, बट योर पेशेंट पोटेशियम लेवल इज 5.6। अगर आपने प्री टेस्ट की अपनी लैब्स ही नहीं कराई थी एंड यू डू नॉट डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग, यू डू नॉट टेक अ फर्दर रिस्पॉन्स हियर, आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको पहले आपने उस लेवल्स लैब्स को उसकी फाइंडिंग्स को आपने डॉक्यूमेंट करा है, तो यहाँ पे आप उसके बीच का डिफरेंस चेक कर पाओगे और आपको पता लगेगा कि हमारा पेशेंट फर्दर जो है डिजायर इफेक्ट ले रहा है या अनडिजायर्ड इफेक्ट ले रहा है। अगर हमारा पेशेंट अनडिजायर्ड इफेक्ट ले रहा होगा, तो आपने अगर वो फाइंडिंग्स को नोट डाउन किया होगा, तो हम एक रैपिड रिस्पॉन्स एक्शन वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। जो बीइंग अ नर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट फास्ट। ओके, एनी डाउट इन दिस? No. Okay. So next we have right to refuse. It's patient respect the decision in this of patient, because it's patient right to refuse. If we say I don't want to take medicine, you can't force the patient to take that medication. But it is important to document it or communicate the physician that the patient does not take the medicine. Okay. So please don't force the patient here to take medicine. No, it's not your right to do that. Your right is to educate that patient or to document these findings or to communicate further with the physician that your patient is avoiding to take that medicine or patient is refusing to take that medicine. Okay. So any doubt in this, please tell me. If there is no doubt, we have to further move on a quiz question. That's your daily routine. So can we move? Okay. So here's a quiz question for you guys. Please read this question properly and then answer. Okay, अगर किसी को नहीं आएगा तो I will discuss it in tomorrow's class. But if you know, please tell me. Okay, I will read this question for you guys. The doctor ordered a patient who is post-op from surgery to receive 2 mg of IV morphine. प्लीज देखो, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया कि राइट डोज क्यों जरूरी है, 2 mg। अब हम इसको 2 ml तो नहीं पढ़ सकते ना बेटा, इसमें आईवी मॉर्फिन दिया है। अब आप ये सोचो कि आईवी दिया है तो हम इसको एमएल की जगह उसको कंसिडर कर सकते हैं, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 mg ऑफ आईवी मॉर्फिन
The patient can have the pain medication every 4 hour PRN. मैंने आपको बताया अभी कि PRN कौन से मेडिकेशन है, जो कि हम कौन से पेन लेवल को असेस करने के बाद हम पेन मेडिकेशन देते हैं, दैट इज दैट मेडिकेशन फॉर अ ब्रेक थ्रू पेन रेटिंग ऑफ 5 और ग्रेटर और 1 to 10 स्केल। 4 hourly उसकी मेडिसिन चल रही है, बट द पेशेंट इज टेलिंग दैट 5 और ग्रेटर उसकी पेन है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। ओके, बट द पेशेंट्स करंट पेन रेटिंग इज ऑन 6 ऑन 1 to 10। अब हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, और या हम हाउ वी विल ऑल्टर द मेडिकेशन डोज हियर। क्यों, अब देखो पहले पेशेंट ने कहा उसको 5 पे पेन हो रहा है, देन पेशेंट कम ऑन 6। तो हेयर हम यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, राइट डोज, राइट रूट। और यहाँ पे अगर हमें असेस कर रहे हैं हम उसकी फाइंडिंग, राइट डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर, ठीक है। तभी आप चीजें आगे आप फर्दर कर सकते हो, या तभी आप उस पेशेंट के डोज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ओके, सो मूव फर्दर। द पेशेंट लास्ट डोज वॉज 0 400 एंड इट इज नाउ 1000। तो वो डोज क्या है, इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हुई है, क्यों, क्योंकि आपने अगर पेन लेवल असेस किया होगा तब आप अपने फिजिशियन को बता पाओगे कि ऑन द 1 to 10 स्केल योर पेशेंट पेन फाइंडिंग इज दैट। ओके, सो यू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एज ऑर्डर। आपने मेडिसिन जो भी आपको ऑर्डर करी थी, आपने उसमें मेडिसिन को पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया है। What will you include in your documentation? अब आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या डॉक्यूमेंट करोगे। अब यहाँ पे बेटा कौन सा राइट लग रहा है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट ऑल द फर्दर फाइंडिंग्स। सिलेक्ट दैट अप्लाइज। ओके, तो अब इस पे क्या क्या चेक करेंगे। फर्स्टली वी हैव चेक द पेन रेटिंग, रूट, लोकेशन ऑफ पेन, डोज, मेडिकेशन नेम, वाइटल साइन, फॉलो अप। अब मुझे आप इस पे आंसर करके बताओगे कि हम इसमें अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग्स में हम कौन कौन सी चीजों को डॉक्यूमेंट करेंगे। नहीं आएगा प्लीज छोड़ देना उसको, अगर आपको आता है प्लीज लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप यू एंजॉय द क्लास। If any student is having any doubt, please ask me further. Okay. Okay, thank you, class. Thank you so much.